Here is the first question in front of you. A cognitive psychologist would likely be most interested in. अभी आपके पास ऑप्शंस हैं. Concentration of neural transmitters in the spinal cord, unconditional positive regard in the therapeutic setting, token economies in prisons, perceptual speed on word association tests, development of fine motor skills in toddlers. Keep in mind we are asking about cognitive psychologist. Your answers are right. The correct option is D. Why this option is correct? Now let me explain. A cognitive psychologist is primarily interested in thought processes and products, and D involving word association is most directly connected to such process and products. So that's why D is the correct option. चॉइस ए क्या कहती है? चॉइस ए इज़ मोर द प्रोविंस ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड की इसमें बात कर रहे हैं, सो दैट्स वाई इट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट. ऑप्शन बी दैट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड की बात कर रहे हैं, सो ये किस में आता है? ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरापिस्ट इसको यूज़ करते हैं. एंड द सी ऑप्शन इज़ ऑफ क्लिनिकल साइकोथेरापिस्ट और बिहेवियरिस्ट. बिहेवियरिस्ट ज़्यादातर टोकन इकोनॉमीज यूज़ करते हैं इन प्रिजन्स और इन क्लिनिकल सेटिंग्स. सो टोकन इकोनॉमी क्या होती है ये हम थेरापीज़ के चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल से. एंड द ई दैट इज़ ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि हम इसमें फाइन मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं जो कि डेवलपमेंट में आती हैं. सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द ऑप्शंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The concept of tabula rasa or blank slate is most closely associated with David Hume, Charles Darwin, John Locke, Sigmund Freud, Eric Fromm. The answer is right. C. John Locke. Now let me explain. The idea of tabula rasa is most closely associated with the philosopher John Locke. John Locke एक philosopher थे. सो इस चॉइस में आपको और भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन में और भी आंसर्स मिल जाते हैं कि जॉन लॉक फिलोसफर थे. चॉइस ए क्या कहती है? चॉइस ए डेविड ह्यूम वाज अ फिलोसफर हु स्पेकुलेटेड ऑन द नेचर ऑफ नॉलेज एंड परसेप्शन. अगर डेविड ह्यूम का कहीं पे पूछ लिया जाता है तो आपको यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि ये फिलोसफर थे हु स्पेकुलेटेड ऑन द नेचर ऑफ नॉलेज एंड परसेप्शन. कि नॉलेज की नेचर क्या होती है, हम किस तरह से परसीव करते हैं और हम कैसे नॉलेज गेन करते हैं, इस पे वर्क था. बी चार्ल्स डार्विन, इसका हम सबको पता है कि इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ पे हमें थेरीज दी थी. सिगमंड फ्राइड वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थेरी. एंड ई ऑप्शन इज एरिक फ्रॉम वाज वन ऑफ द थेरिस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्राइड. ये एक थेरिस्ट था जो फ्राइड से इन्फ्लुएंस हुआ था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द कंसेप्ट ऑफ डुअलिज्म रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड इनटू. हियर आर द ऑप्शंस. Very good, you are very quick. That's great. So the correct option is B, body and spirit. Let me explain. The concept of dualism refers to the division of the world and all things in it into two parts, body and spirit. Choice C refers to two ways of conceptualizing the structure and function of mind. Structure and function, that is its explanation. E to two different types of experimental variables. E में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात है, ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं. Here is a question number 4. The humanistic approach to psychology emphasizes the importance of. That's great. So the answer is free will and conscious awareness. Here is the explanation. Humanistic psychologists are primarily concerned with the impact of free will on behavior. Choice A. Childhood experiences are emphasized in the psychoanalytic approach. Childhood experience psychoanalytic approach में डिस्कस हुए थे, होते हैं, हम वहाँ पे childhood experiences को आइडेंटिफाई करते हैं. देन चॉइस बी इज़ बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस. तो यहाँ पे refers to either the biological or medical model or the behavioral genetics approach.
तो इसमें से अगर कोई भी आता है तो हम इसमें सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं. देन द कोग्निटिव अप्रोच फोकसेस ऑन हाउ maladaptive thoughts can influence behavior. That is, maladaptive thoughts means that is the cognitive approach. And the social cognitive approach centers on the interaction of cultural experiences. अगर cultural experiences की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास social cognitive approach का जिक्र होगा. Question number 5. Psychologists who emphasize the importance of repressed memories and childhood experiences subscribe to which of the following perspectives? That's great. So the correct answer is C, psychodynamic. You all are doing good. Now let me explain. Proponents of the psychoanalytic or psychodynamic approach believe that the source of all current trauma can be traced back to childhood through repressed memories. Choice A. The cognitive approach stresses the importance of thought process and schemas in evaluating behaviors. So cognitive approach किस पे स्ट्रेस देती है ये यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया. दैन चॉइस बी. बिहेवियरिस्ट बिलीव इन द पावर ऑफ लर्निंग एंड अदर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर. चॉइस डी इज अबाउट द सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव फोकसेस इंस्टेड ऑन द कल्चर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउ इट शेप्स देम इनटू हु दे आर. सो दैट इज द explanation of choice D. And here E emphasize the physiological answers in brain and body chemistry to explain the behavior. Now question number 6. Psychologists who believe behaviors are learned most likely ascribe to the philosopher of. Correct answer is B.F. Skinner. You all are very well prepared. That's glad for me. Explanation. नाउ यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने कीवर्ड को यहाँ पे सर्कल कर लिया है. कीवर्ड हमारे पास क्या है, बिहेवियर एंड लर्नड. बिहेवियर्स आर लर्नड. सो ये हमारे पास एक की पॉइंट आ गया है. तो इससे हमारे पास क्लियरली आंसर आ जाता है कि ये कोई बिहेवियरिज्म से रिलेटेड, और बिहेवियरिज्म इन सारी ऑप्शंस में से सिर्फ बी.एफ. स्किनर ही है. अब्राहम मैस्लो कौन थे, ह्यूमनिस्टिक. कार्ल रोजर्स, ये भी ह्यूमनिस्टिक. सिगमंड फ्राइड कौन थे, साइको एनालिटिक थे, साइकोडायनामिक थ्योरी दी. क्वेश्चन नंबर 7. ओ आई फॉरगेट टू हाइड इट्स एक्सप्लेनेशन. सो आप एक्सप्लेनेशन को ज़रा आप नहीं देखें, आप इसका आंसर बताएं. अकॉर्डिंग टू द साइको एनालिटिक परस्पेक्टिव, अ पर्सन हु डज नॉट रिमेंबर अ पेनफुल इवेंट एक्सपीरियंसेस विच डिफेंस मैकेनिज्म. दैट्स ग्रेट. रिप्रेशन. अब हमें सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एलिमिनेट दोज थिंग्स विच आर नॉट डिफेंस मैकेनिज्म्स. हमें उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेना है जो डिफेंस मैकेनिज्म्स नहीं हैं, जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और कॉन्शियसनेस. ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दीज आर नॉट डिफेंस मैकेनिज्म्स. तो ये दो तो हमने एलिमिनेट कर दी. अब इसके बाद पीछे आ जाती हैं हमारे पास 3 ऑप्शंस रह जाती हैं. अब इन तीनों में से हमें सेलेक्ट करना है कि इधर इट्स डिनाइल, प्रोजेक्शन और रिप्रेशन. डिनाइल का क्या मतलब है कि हम कोई भी इवेंट होता है हम उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, या फिर हम उसको याद ही नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि ये उस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं. दैट इज़ डिनाइल. सो ये तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमने क्वेश्चंस में डिनाइल का तो पूछा नहीं. हमने कहा कि हम जो हमारे पास पेनफुल इवेंट्स होते हैं हम उसको याद नहीं रखते. सो प्रोजेक्शन क्या होता है, हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी दूसरे के ऊपर थ्रू आवर एक्शंस और इमोशंस हम किसी दूसरे के ऊपर प्लेस कर देते हैं. सो प्रोजेक्शन भी एलिमिनेट हो जाता है. देन रिप्रेशन रह जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज रिप्रेशन, बिकॉज रिप्रेशन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म in which the subconscious keeps painful memories from surfacing. So repression ही एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम अपने पेनफुल मेमोरीज को सबकॉन्शियस में ले जाते हैं. अनकॉन्शियस में नहीं, सबकॉन्शियस में रहती हैं ये हमारी. सो द करेक्ट आंसर वाज रिप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 8. कार्ल रॉजर्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच साइकोलॉजिकल अप्रोच. Focus on the keyword.
अभिषेक, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन के आंसर में पहली मिस्टेक क्या की, आपने फ़ौरन से ए कह दिया। ए तो वो एक कंसेप्ट था जो कार्ल रॉजर्स ने दिया था, हम तो साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर दो आपको मिलती जुलती चीज़ें नज़र आ जाती हैं तो आपने क्वेश्चन में की टर्म पे फोकस करना है कि वो पूछ क्या रहा है। साइकोलॉजिकल ने जो टर्मिनोलॉजी दी उसके बारे में पूछ रहे हैं, या कार्ल रॉजर्स कौन सी अप्रोच में लाइक करता है वो अप्रोच के बारे में पूछ रहे हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट। द करेक्ट आंसर इज ह्यूमनिस्टिक, सी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। Carl Rogers is one of the major player in the humanistic approach to psychology. So the correct answer is C. He coined the term unconditioned positive regard. Now it's clear? He coined the term unconditioned positive regard. अगर आपसे वो टर्म पूछते तो हम एक की तरफ जाते, लेकिन हमने टर्म नहीं पूछी थी, अप्रोच पूछी थी। So that means therapist proper regard toward his patients, always viewing them in a positive light. However, this is not a psychological approach. ये एक psychological approach नहीं है, ये एक टर्म है जो हम पेशेंट्स के साथ थेरापेटिक सेटिंग में जिसको यूज़ करते हैं। Then the next option, cognitive psychology is focused on cognition and thought processes, while maladaptive thoughts are part of treating the whole person. That is not the only component of what makes up a person. So eliminate B. The socio-cultural component of a person, choice D, are also another component of an individual's experience, but Carl Rogers sought to treat the individual rather than systematic problems. And behaviorism E is associated with B.F. Skinner. अगर B.F. स्किनर की बात होती तो हम बिहेवियरिज्म के साथ जाते। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स, द मोस्ट बेसिक ऑफ ह्यूमन नीड इज। हमने बात की बेसिक नीड्स की। सो बेसिक नीड्स आर फिजियोलॉजिकल। गॉट इट? जब तक हमारी फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स हमारी पूरी नहीं होंगी, हम किस तरह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच सकते हैं, या फिर हम बिलोंगिंग, सेफ्टी, एस्टीम के लेवल्स को जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे नहीं पहुंच सकते। सो द बेसिक नीड्स आर फिजियोलॉजिकल नीड्स। According to Maslow's hierarchy of needs, the physiological needs of a person, such as the needs for food and water, are at the base of the pyramid. Maslow suggested that if a person cannot have these basic needs satisfied, it is much more difficult to accomplish a sense of belonging, esteem, and potentially self-actualization. So the basic needs are physiological needs. Question number 10. Which approach would most likely involve the study of identical twins separated at birth? बायोलॉजिकल में हमने पढ़ा था कि हम स्कैन्स करते हैं, तो अगर हम बाय बर्थ उनको अलग कर देंगे तो हम उनकी स्कैनिंग करके करेंगे कि उसका माइंड किस तरह से है। द करेक्ट ऑप्शन वाज बिहेवियरल जेनेटिक्स। हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो चीज़ें हैं ना वो बाय बर्थ हमारे अंदर आती हैं, हमें विरासत में मिलती हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्विन स्टडी करते हैं और उनको सेपरेट सेपरेट रख के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में उनका ब्रॉटअप करते हैं कि क्या उनमें कोई डिफरेंस होता है, क्या वाकई उनमें जीन्स की वजह से वो इस तरह का बिहेव करते हैं या हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ बिहेवियरल जेनेटिक्स। बायोलॉजिकल में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था इस अप्रोच में कि यहाँ पर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हमारा बिहेवियर ब्रेन के किस स्ट्रक्चर या फंक्शन की वजह से ऐसा है, उसमें हम ब्रेन की स्कैनिंग्स करते हैं ज़्यादा। तो बायोलॉजिकल इज़ ऑल अबाउट द स्कैनिंग्स ऑफ द ब्रेन। Behavioral genetics often involve the study of identical twins separated at birth. This allows researchers to examine the contribution of genetics versus those of environment in the development of various traits. अब यहाँ पर हम इसलिए जेनेटिक स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि क्या जीन्स की वजह से ही उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि पेरेंट और उनके फोर फादर्स सबको गुस्सा आता है और इसको भी गुस्सा आता है, या इन्वायरमेंट का कोई फ़र्क होता है। अगर हम इन बच्चों को डिफरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें तो क्या इनका बिहेवियर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता।
सो बेसिकली बिहेवियरल जेनेटिक्स जो हैं इसमें हम ट्विंस स्टडी इसी में करते हैं, बिहेवियरल जेनेटिक्स में, बायोलॉजिकल में नहीं करते. So the question number 11, you are at a lecture about the history of psychology and the speaker states that William Vaughan's theory of structuralism was the first scientific psychological theory. On what historical fact might the speaker be basing her or his argument? Here are the options. See whose answer is correct. Let's unfold the answer. So the correct option was C. So Muzammil, your answer was right. Structuralism was based on the results of his introspection experiments, so it is at least in part empirical. C हमारे पास इसलिए correct option है because scientific research is empirical by nature. Scientific research होती है वो empirical होती है by nature. And Vaughan based the theory of structuralism on results of experiments. तो Vaughan ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बेस पर उसने ये स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट दिया था. Vaughan's reputation and the academic setting are not relevant to the scientific nature of his theory. Vaughan did not study under Pavlov, nor was he a clinical psychologist. So हमने इनको किस वजह से कर दिया कि एक तो विलियम वॉन इवन पावलव का स्टूडेंट नहीं था. सो ऑप्शन बी तो यहीं पे निकल गई. उसके बाद हमारे पास आता है कि इंटरनेशनली नोन एट द टाइम एंड लेंट क्रेडिट टू हिज थेरी इन द साइंटिफिक कम्युनिटी. सो विलियम वॉन की थेरी तो काफ़ी वेल नोन थी, तो ए को भी हमने एलिमिनेट कर दिया. डी में हम कह रहे हैं कि क्लिनिकल करियर में इनका काफ़ी रोल था, तो भी ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं थे. वॉन वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी साइकोलॉजी इन एन एकेडमिक सेटिंग. ये एकेडमिक सेटिंग में नहीं था, ये इसने फर्स्ट लेबॉर्ट्री बनाई थी, तो इसलिए ई ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 12, सिगमंड फ्राइड्स थ्योरी ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड. Read the options. Now let's unfold the answer. Yes, you are right. Depends on the idea that humans can remember events but not be consciously aware of the memory. So let it explain. The unconscious mind contains memories of events or feelings of which we are not consciously aware. It was not the first comprehensive theory. Freud did not use cadaver dissection or to formulate the theory, while the sex drive figures prominently in the theory. The theory is not focused entirely on sex, while some psychologists would dispute much of Freud's theory. Many therapists still find the idea of the unconscious mind relevant. So यहाँ पर क्या है, हमने इन ऑप्शंस को बेसिकली एलिमिनेट किया है कि यहाँ पर फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन एक तो इसकी नहीं थी, इसलिए हमने इस ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया. ह्यूमन ब्रेन और कैडावर डिसेक्शन की वजह से इसने कोई थेरी नहीं दी, इसलिए बी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ हमने फ्राइड की थेरी में नहीं पढ़ी. देन इज़ आउटडेटेड एंड हैज़ नो रेलेवेंस फॉर मॉडर्न साइकोलॉजी. तो भी रेलेवेंस तो है मॉडर्न साइकोलॉजी में, इसको पढ़ा जाता है, सो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई. एंड इसके अलावा फोकस इंटायरली ऑन ह्यूमन मेल्स सेक्स ड्राइव, तो जस्ट मेल्स की तो इसने बात नहीं की, सो हमने डी को भी एलिमिनेट कर दिया. एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज ई. इन व्हाट वे माइट अ बिहेवियरिस्ट डिसएग्री विद द कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट अबाउट द कॉज ऑफ एग्रेशन. करेक्ट ऑप्शन इज डी. जीनियस हो गए वैसे अब आप सब ना. गुड. A behaviorist might state that aggression is caused by past rewards for aggressive behavior, while a cognitive psychologist might believe aggression is caused by memories or ways we think about aggressive behavior. Explanation. Behaviorists look at what behavior we are rewarded for, and cognitive psychologist explains our behavior through the way we interpret events. The rest of the answers are explanation of other psychological perspectives incorrectly applied to behaviorism or cognitive theory. तो बाकी सारी जितनी भी explanations थी वो behaviorism और cognitive theory में lie नहीं करती, वो इसमें इसके बिल्कुल opposite हैं. So the correct option was D. So आप सब ने बहुत अच्छा जज किया.
Question number 14. Dr. Marco explains to a client that his feelings or hostility towards a co-worker are most likely caused by the way the client interprets the co-worker's actions and the way he thinks that people should behave at work. Dr. Marco is most likely working from what perspective? The correct option is B, cognitive. ये भी जिन्होंने ए और सी को करेक्ट किया है वो क्या सोच के किया है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरप्रेट की कि हम किस तरह से क्लाइंट की फीलिंग्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसके एक्शंस को, और हम किस तरह से थिंक कर रहे हैं कि दैट द पीपल शुड बिहेव एट वर्क. हम सोचते हैं ना ऐसा कुछ करना चाहिए. सो ये सारा कुछ तो कोग्निटिव में होता है, साइको एनालिटिक में तो हम नहीं सोचते. बी ऑप्शन इज करेक्ट. द कोग्निटिव पर्सपेक्टिव एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर्स एक्शंस एंड बेस्ट फिट्स द गिवन सिनेरियो. द अदर पर्सपेक्टिव्स वुड एम्फेसाइज अदर टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस. सो द कोग्निटिव ही है जिसमें हम इंटरप्रेट करते हैं, थिंक करते हैं, चीज़ों को हम परसीव करना, इंटरप्रेट करना, अपने तरीके से सोचना. सो ऑल दिस हैपन्स इन विच पर्सपेक्टिव? इन कोग्निटिव पर्सपेक्टिव. इट्स क्लियर. पर आपने की पॉइंट्स क्वेश्चन में ढूंढने हैं कि कौन सा की पॉइंट है जिसकी बेस पर हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आंसर्स हैं हमारे पास तो हमने उसी की पॉइंट को देखते हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है कि ये इसमें नहीं आती. बिहेवियरल में हम बिहेवियरल लर्न होते हैं, साइको एनालिटिक में तो हम पास्ट एक्सपीरियंसेस पे जाते हैं, ह्यूमनिस्टिक में टोटली इंडिविजुअल की अपनी एक वर्थ होती है, और सोशियो कल्चरल में सोशल फैक्टर लाजमी होगा. देन नंबर 15. द रिसर्च मेथडोलॉजी विलियम वॉन्ड यूज्ड इज कॉल्ड. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. सो योर आंसर इज राइट. Wand used a technique of introspection to research his theory of structuralism. He did not use naturalistic observation, and inferential and scientific are general terms that might be applied to many different types of research. ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म की बात हमने नहीं की. हमने कहा है कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या थी, तो रिसर्च मेथडोलॉजी इंट्रोस्पेक्शन थी. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज़ समथिंग डिफरेंट. इसने कोई नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन नहीं की थी. इन्फ्रेंशियल और साइंटिफिक ये हमारी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं. सो रिसर्च मेथडोलॉजी वाज इंट्रोस्पेक्शन. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट रोट द फर्स्ट साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक. इनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट ने पहली साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक लिखी थी? द करेक्ट आंसर इज़ ए. आप सबने ठीक आंसर दिया. और बुक का नाम क्या था? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, एंड ही रोट इन 1890. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1890. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट वाज पार्ट ऑफ द गेस्टाल्ट ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट. ऑप्शन इज ई. एक्सप्लेनेशन. Vadimer is the only psychologist in this list that was included as part of the Gestalt group in the text. So अब हमें इन सब का पता लग गया है कि ये सारे जितने भी लोग हैं ये किस ग्रुप से लाई करते हैं. सो गेस्टाल्ट में जो आता है साइकोलॉजिस्ट वो मैक्स वैदिमर है. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इज मोस्ट इंटीग्रल टू सिगमंड फ्राइड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी. Yes, the correct answer is behaviorism. So how you say that its option is C? You can say that my answer is right. Exactly, my answer is wrong. So I was just checking your concept कि क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं या नहीं करते. So your answer was right. Its answer is C. The unconscious mind is an integral concept in Freudian theory. Memories and impulses are repressed into the conscious mind, and this drive out later behaviors. The other concepts mentioned do not relate to psychoanalytic theory. So you are very active. अभी इतने सारे क्वेश्चंस करके आपको ये तो पता लग गया है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, और अगर मैंने आपको गलत बताई है कि ये है तो आपको फ़ौरन से क्लिक हो गया कैसे, हाँ ये कैसे हो गया. सिगमंड फ्राइड का कौन सा कंसेप्ट है जो बिहेवियरिज्म में भी जाके लाई करता है. क्वेश्चन नंबर 19.
Sigmund Freud's psychoanalytic theory has been criticized for being. Correct option is D. क्योंकि उसने जो भी मेथड अप्लाई किया था वो अनसाइंटिफिक था, अनवेरीफाइबल था. उसने जस्ट केस हिस्ट्रीज ली थी और उसको ना तो उसने किसी रिसर्च या प्रैक्टिकल के थ्रू उसने उसको चेक नहीं किया था. सो दैट्स वाई इट वाज रिजेक्टेड. Freud did not use the scientific method and many of his conclusions cannot be tested. उसके जितने भी कंक्लूजन्स हैं हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते. जैसे पहले भी बताया मुज़म्मिल ने कि ये अनकॉन्शियस हम चेकिंग कर रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से बाय एक्सपेरिमेंट्स हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. द थ्योरी वाज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल केसेस इन थेराप्यूटिक सेटिंग्स एंड इज़ नॉट टाइड क्लोजली टू बिहेवियरिज्म. जो उसने थेरीज अगर केस स्टडीज़ ली भी थी तो उसमें उसकी थेराप्यूटिक सेटिंग्स में मेल और फीमेल्स दोनों ही थे, और बिहेवियरिज्म के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं जाता. सो इस तरह से हमने इन ऑप्शंस को एलिमिनेट किया. क्वेश्चन नंबर 20. जॉन वॉटसन रिलाइड ऑन द पायनियरिंग वर्क ऑफ डैश इन एस्टैब्लिशिंग बिहेवियरिज्म एज अ पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी. क्वेश्चन है जॉन वॉटसन ने का जो वर्क था वो किसके पायनियरिंग वर्क पे रिलाई करता था इन एस्टैब्लिशिंग बिहेवियरिज्म एज अ पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी. स्किनर तो बाद में आता है. बिल्कुल लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग को टेस्ट करने के लिए. जॉन वॉटसन थी और इनकी एक असिस्टेंट थी. इन दोनों ने मिलकर इवन पावलव का जो कंसेप्ट था इसको लिटिल एल्बर्ट पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा था. तो सो पायनियरिंग वर्क किसका था? इवन पावलव का था. क्लासिकल कंडीशनिंग था पायनियरिंग वर्क, और इवन पावलव ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया था ह्यूमंस पे, और वो एक 9 माह का बच्चा था लिटिल एल्बर्ट, उस पर अप्लाई किया था. वॉटसन रेफर टू द कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स इवन पावलव डिड विद डॉग्स. इवन पावलव ने डॉग्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था और ह्यूमंस पे ये एक्सपेरिमेंट वॉटसन ने किया था. B.F. स्किनर केम आफ्टर वॉटसन. B.F. स्किनर तो वॉटसन के भी बाद में आता है. एंड अदर साइकोलॉजिस्ट मेंशन्ड आर नॉट पार्ट ऑफ द बिहेवियरिस्ट पैराडाइम. 21. B.F. स्किनर इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ डैश टू द पैराडाइम ऑफ बिहेवियरिज्म. So the correct option is B. Reinforcement. Skinner added the idea of reinforcing events such as reward and punishment. Skinner का जब भी नाम आएगा तो reward and punishment आपके जहन में आ जानी चाहिए. The basic idea of behaviorism, unconscious thinking and defense mechanisms are concepts from the psychoanalytic perspective. ठीक हो गया. और इसके बाद जो कंडीशनिंग है इज़ अ जनरल टर्म यूज्ड बिफोर स्किनर. स्किनर से पहले कंडीशनिंग की टर्म यूज़ की गई थी. एंड इंट्रोस्पेक्शन वाज अ टेक्निक यूज्ड बाय वॉन्ट. इंट्रोस्पेक्शन की जो टेक्निक है ये विलियम वॉन्ट ने यूज़ की थी. सो इस तरह आपके बाकी टर्म्स भी आपको क्लियर हो जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट माइट हैव डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ ह्यूमनिस्ट. Okay, that's good. Abraham Maslow. C is the right option. Maslow is the only psychologist in this list included in the section on humanism in the text. Skinner, Pavlov and Watson are behaviorists. Question number 23. Symbolic dream analysis might be an important research technique to a psychologist from which of the following perspective? So the correct option is C. Psychoanalytic. Good. The idea that dreams contain symbols is central to the psychoanalytic perspective and not any of the other perspectives listed. So dream analysis हम जिस psychoanalytic perspective में ही करते हैं और किसी में भी dream analysis का जिक्र नहीं है. 24. Behaviorists explain human thought and behavior as a result of. Okay, the correct answer is A. Past conditioning. बिहेवियर्स ज़्यादातर कहते हैं कि हमारी जो भी थॉट्स होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं, ये पास्ट में हमारी उनके साथ कंडीशनिंग हो गई होती है जिसकी वजह से हम फ्यूचर में उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं और उन बिहेवियर्स को हमें फिर अनकंडीशन करना होता है. बिहेवियरिस्ट एक्सप्लेन ह्यूमन थॉट्स एंड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग इन आवर पास्ट.
इधर क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू हुए हों या ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू हुए हों, ठीक है, दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशनिंग पास्ट में ही होती है। दिस कंडीशनिंग रिस्ट्रिक्ट्स और एलिमिनेट्स द आइडिया ऑफ पर्सनल चॉइस। अब इसमें कोई पर्सनल चॉइस तो होती नहीं है। बिहेवियरिस्ट डू नॉट यूजुअली रेफर टू बायोलॉजिकल काजेस, बायोलॉजिकल काजेस को भी बिहेवियरिस्ट यूज़ नहीं करते। इसमें एवोल्यूशनरी थ्योरी का भी कोई रोल नहीं है, मतलब नेचुरली भी लोग सेलेक्ट नहीं होते। एंड द अनकॉन्शियस माइंड इज़ अ कंसेप्ट फॉर फ्रॉम साइकोएनालिटिक थ्योरी। सो दीज वाई वी एलिमिनेट ऑल ऑफ द other terms. Number 25. Therapists who say that she uses whatever psychological perspective work best for each patient might be best described as. Your answer is right. C. हम आजकल जब भी किसी पेशेंट पे कोई थेरी अप्लाई करते हैं, कोई थेरापिस्ट किसी पेशेंट या क्लाइंट के साथ वर्क करता है, तो वो उसी पर्सपेक्टिव को यूज़ करता है जो सबसे बेस्ट वर्क करता है, या बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को मिक्स करके वो उसको यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट के जो भी सिम्टम्स हैं उनको डिस्क्राइब कर सकें, उनको प्रिडिक्ट कर सकें और उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर्ली डील कर सकें। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ एक्लेक्टिक. The eclectic perspective claims that no one perspective can best explain all human behaviors, and a therapist who work with many different perspectives to help individual patient is in some sense eclectic, not any of the other specific perspectives listed. Number 26. For which of the following is William Wundt primarily known? Very good. So the correct option is A. The establishment of the first formal laboratory for research in psychology. Number 27. Fred, a tennis coach, insists that he can make any reasonably healthy individual into an internationally competitive tennis player. Fred is echoing the thought of. The correct option is B. वॉटसन ने ऐसा कहा था, जॉन बी वॉटसन का ऐसा कहना था। अब्राहम मैस्लो ने ऐसा कुछ नहीं कहा। Okay, the next question 28. Which of the following is a statement with which Skinner's followers would agree? Okay, the correct option is D. Free will is an illusion. ये statement दी थी स्किनर ने। अब बाकी statements को हम किस तरह से eliminate करें? Whole is greater than the sum of its parts. तो ये तो स्किनर ने तो नहीं कहा, ये तो गेस्टाल्ट की बात है। द गोल ऑफ बिहेवियर इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बिहेवियरिज्म में तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो ह्यूमनिस्टिक में आता है। नेचर इज़ मोर इन्फ्लुएंशियल दैन नेचर। तो नेचर की बात कि नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन नेचर, ऐसा भी स्किनर ने कुछ नहीं कहा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. फ्री विल इज़ एन इल्यूजन. नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज हैज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर? गुड. द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. ह्यूमनिज़म. क्योंकि यहाँ हम ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं, तो ये सारी ह्यूमन नेचर की बात ह्यूमनिज़म में ही की गई थी. नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स क्रिएटेड अ डिमांड फॉर क्लिनिशियंस दैट वाज फार ग्रेटर दैन द सप्लाई? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. वर्ल्ड वार 2. वर्ल्ड वार 2 ही एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट था जिसके बाद क्लिनिशियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए. सो दैट हिस्टोरिकल इवेंट वाज वर्ल्ड वार 2. डैश साइकोलॉजी एग्जामिन्स बिहेवियरल प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ देयर एडॉप्टिव वैल्यू फॉर अ स्पीशीज ओवर द कोर्स ऑफ मैनी जनरेशंस? गुड. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. एवोल्यूशनरी. Number 32. The study of the endocrine system and the genetic mechanisms would most likely be undertaken by a. That's great. Option B. Physiological psychologist. क्योंकि यहाँ पे हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जेनेटिक मैकेनिज्म्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं. क्लिनिकल का काम थेरेपीज़ की तरफ है, सोशल का काम सोशली फैक्टर्स की तरफ है और एजुकेशनल हम एजुकेशनल सेटिंग्स में जाते हैं. सो हमने की टर्म्स को फोकस किया तो हमारे पास आंसर आ गया बी. नंबर 33. अ मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन अप्रोच टू बिहेवियर सजेस्ट दैट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. वेरी गुड. और जिन्होंने डी कहा
मोस्ट बिहेवियर इज गवर्न बाय अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड फैक्टर्स और मल्टीफैक्टोरियल। अब इसमें क्या है, इंटर रिलेटेड में बायो भी आ गई, साइको भी आ गई, सोशल भी आ गई। ऊपर भी मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशंस में हमारे पास बायो, साइको, सोशल तीनों आ जाती हैं। तो ये कम्प्लेक्स नेटवर्क है इन तीनों फैक्टर्स का। सो द मोस्ट बिहेवियर इज गवर्न बाय अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। नंबर 34, psychologists answer to the question of whether we are born or made tends to be that. So we are both born and made, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम ब्रेन पे भी वर्क कर रहे हैं, हम बिहेवियर पे भी वर्क कर रहे हैं। सो हम बनाए भी गए हैं और हम बनते भी हैं। हम बायो साइको सोशल मॉडल को अगर देखें तो हम कहेंगे कि हम बनाए भी गए हैं और हम खुद को कुछ बनाते भी हैं, अपनी पर्सनालिटी को हम खुद डेवलप भी करते हैं। और इसमें सोशल फैक्टर्स का भी रोल होता है, कुछ हमारी जीन्स में भी चीज़ें होती हैं। सो वी आर बोथ बॉर्न एंड मेड। नंबर 35, a good reason for taking notes in your own words rather than verbatim is that. Okay, so the answers are coming. Its option is D. Very good. Because it forces you to assimilate the information in a way that makes sense to you. जब हम अपने हाथों से खुद अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो वो हमारे लिए सेंसिबल होते हैं। हम एक नज़र देखेंगे भी तो हमें फ़ौरन समझ आ जाएगी कि हमने क्या लिखा है और इसका मतलब क्या था। किसी और का लिखा हुआ आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या था इम्पोर्टेंट, लेकिन जब आप खुद लिखते हैं तो आप उसको एक नज़र देखने में ही समझ जाते हैं कि आपने क्या लिखा था। सो नंबर 36, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन? क्रिटिकल थिंकिंग्स क्या होती हैं, स्किल्स क्या होती हैं? सो आई थिंक ऑल ऑफ योर आंसर्स आर रॉन्ग। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स need to be deliberating taught because they often do not develop by themselves with standard content instructions. So D is the correct option. क्रिटिकल थिंकिंग स्किल सबसे पहले तो आपको सिखाई जाती हैं कि क्रिटिकली आपने चीज़ों को सोचना कैसे है, फिर ही हम अपनी तरफ से चीज़ें लिख सकते हैं, उनको सोच सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि एक्चुअली हाउ वी कैन थिंक द आंसर्स डिफरेंटली। तो जब तक आपको बताया नहीं जाएगा, सिखाया नहीं जाएगा, कोई आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी कि किस तरह से सोचना है, तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं होती।